हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 174। कल मैंने पढ़ा था 172 एंड 173। आज मैं पढ़ती हूँ 174। 174 article says sessions of the state legislature prorogation and dissolution। क्या बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन के बारे में। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विधानमंडल के बारे में बताता है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ कि ये सब है क्या, राज्य के विधानमंडल के सत्र क्या है, सत्रावसान क्या है और विघटन क्या है इसका। तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी और इस आर्टिकल को मैं आज पढ़ूंगी। 174 article says sessions of the state legislature prorogation and resolution. Number 1, the governor shall from time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. Number 2, the governor may from time to time a prorogue the house or either house. Number A, prorogue the house or either house. B, dissolve the legislative assembly. 175 article says right of governor to address and send messages to the house or houses. 175 article says right of governor to address and send messages to the house or houses. Number 1, the governor may address the legislative assembly, or in the case of a state having a legislative council, either house of the legislature of the state or both houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members. Number 2, the governor may send message to the house or houses of the legislature of the state, whether with respect to a bill then pending in the legislature or otherwise, and a house to which any message to so send which to message. The governor may send message to the house or houses of the legislature of the state, whether with respect to a bill then pending in the legislature or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. 176 article says special address by the governor. 176 article says special address by the governor. Number 1, at the commencement of the first session after each general election
to the Legislative Assembly, and at the commencement of the first session of each year, the governor shall address the Legislative Assembly, or in the case of state having a legislative council, both houses assembled together and inform the legislature of the causes of its summons. Number 2, provision shall be made by the rules regulating the procedure of the house or either house for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ इसका। भारत के संविधान का अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। नंबर 1, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। नंबर 2, राज्यपाल समय समय पर का सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। नंबर का सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। कौन? राज्यपाल। नंबर का विधानसभा का विघटन कर सकेगा। संविधान का अनुच्छेद 175 कहता है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। नंबर 1, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। नंबर 2, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वे सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। नंबर 1, राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एकमात्र समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। नंबर 2, सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अब मैं पढ़ लेती हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट इसमें कितना हुआ। नंबर 1, substituted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 as 9 for Article 170. Number 2, substituted by the Constitution 42nd Amendment
Act 1976 S29 for the explanation WEF 3rd oblique 1st 1977. Number 3rd substituted by the Constitution 84th Amendment Act 2001 S54 2000 and 1971 respectively. Number 4 substituted by the Constitution 87th Amendment Act 2013 2003 as for S4 S4 for 1991. Number 5th inserted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S29 WEF 3rd oblique 1st 1977. Number 6 substituted by the Constitution 84th Amendment Act 2001 S54 2000 and 1971 respectively. Number 7 substituted by the Constitution 84th Amendment Act 2001 S54 certain words. 8 substituted by the Constitution 87th Amendment Act 2003 S4 for 1991. 9th substituted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S 10 for 1/4. नंबर 1 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 9 द्वारा अनुच्छेद 170 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 29 द्वारा 3/1/1977 से स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा क्रमशः 2000 और 1971 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा क्रमशः 2000 और 1971 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 4 संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 4 द्वारा 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 5 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 4 द्वारा 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 5 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 29 द्वारा 3/1/1977 से अंतः स्थापित। नंबर 6 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा 1/4 के स्थान पर प्रतिस्थापित। Number 1 substituted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S24 for 6 years WEF 6/9 1979. The words 6 years were substituted for the original words 5 years by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 S30 WEF 3/1 1977. Second substituted by the Constitution 16th Amendment Act 1963 S4 for clause A. Number 3 substituted by the Constitution First Amendment Act 1951 S8 for Article 174. नंबर 1 संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 24 द्वारा 6/9/1979 से 6 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित।
संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 30 द्वारा 3/1/1977 से मूल शब्दों 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष प्रतिस्थापित किए गए थे। नंबर 2, संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4 द्वारा खंड का के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 8 द्वारा अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो दोस्तों, आज ये मैंने 3 अनुच्छेदों को पढ़ा है। अनुच्छेद 173, 174, 175 और 176 को पढ़ा है। उसके साथ साथ में इनमें संशोधन जो हुआ है उसके बारे में बताया है। अब मैं कल पढ़ूंगी 177 अनुच्छेद और 178 अनुच्छेद को। और संध्या मैम का चैनल आपका अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें उस पर और लाइक करें। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को सुनने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।